Praise the Lord. So good to see all of you this morning. सचमुच परमेश्वर भला है. And God has been so good to us. He's so kind to us, so faithful to us. Yeah, thank you so much. The worship team was very blessed, and truly God has been so kind to us, and we are so blessed की खरोखरच परमेश्वराने आतापर्यंत हम सहाय्य केलं आहे. And truly I welcome all of you. सभी का स्वागत करते हैं. Thank you so much for joining us. And this morning, if you have your Bibles, और जैसे हमने गाया है कि ऐसा कोई शस्त्र हमारे विरोध में नहीं खड़ा है कि वो हमारे विरोध में चल सके. And truly हर एक दिन we are alive, it is completely the grace of God, and truly we are experiencing God's mercies, God's kindness, and God has been so faithful to us in small things. And sometimes the small things are mounting up to big, major things in our lives. When we look back and see, जब हम पीछे देखकर मुड़ते हैं और देखते कि परमेश्वर ने हमें कहाँ तक ले आया है, और सचमुच परमेश्वर भला है. और फिर एक बार सबका स्वागत है. थैंक यू सो मच. मैं जानता हूँ कई लोग भारत से है, भारत के बाहर है, और कुछ लोग दूर दूर से. आज सचमुच शायद आपके वहाँ पर रात होगी या आपके पास दिन होगा, मैं नहीं जानता हूँ, परंतु जहाँ पर भी आप है परमेश्वर आपको आशीष करे. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आज उसके वचन से आशीषित करेगा. आमेन. इफ यू हैव योर बाइबल्स प्लीज, अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो क्यों ना हम रोमियो की किताब इसका 5वां अध्याय, we will turn to the book of Romans chapter 5, and Romans chapter 5 we were going to see all the way from verse 1 till verse 5. Romans chapter 1 from verse 1 to verse 5. I will start reading in English. Romans chapter 5 from verse 1, the Bible speaks to us. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 2 speaks to us, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. If you see, please, very carefully, this is Apostle Paul writing from verse 3. I'll repeat again. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Verse 5, church. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you so much, Lord. When we hope in you, we will never be put to shame, Lord. And these words have come from your mouth, Lord. पिता, जी आशा तुमच्यामध्ये आहे ती गौरवाची आशा आम्हाला कधी लाजवत नाही प्रभू येशू. आणि पिता, आता मला विश्वास आहे की हे शब्द दुसरा कुठला लेखक नाही, परंतु पिता हे तुमचे शब्द आहेत बाप्पा. आणि तुमचा शब्द रिकामा परत कधी जात नाही, पण ज्या उद्देशासाठी तो आला आहे तो उद्देश पूर्ण करणारा शब्द तुमचा शब्द आहे बाप्पा. Father, I pray in the name of Jesus, those who are restless, those who are hopeless,
those who are tired of their life, those who have been completely outcasted, my Master, broken down in their life, Lord. I pray earnestly, let the life-giving word flow right now in the name of Jesus into their lives, Lord. And let every hopeless situation be full of hope. Let every lifeless life be full of the life of Jesus. And Father God, in the name of Jesus, we experience, Abba, your word is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. तुमचा शब्द पिता सजीव सक्रिय आहे, कोणताही दुधारी तरवारीपेक्षा तीक्ष्ण आहे, तो मज्जा आणि रज्जूने भेदून जाणारा, अंतःकरणाला भेद जाणारा. आज तुमचं वचन निष्फळ परत येत नाही, पण ज्या उद्देशासाठी पाठवला तो उद्देश पूर्ण करतो बाप्पा. आज तुमचा शब्द उंचावला जावा बाप्पा. Forever, O Lord, thy word is settled high above in heaven. Be magnified, Father. Be magnified. पिता, वचन ऐकता ऐकता लोकांना बरं करा. वचन ऐकता ऐकता रोगमुक्त करा बाप्पा. वचन ऐकता ऐकता अडिक्शन सोडून द्या बाप्पा. वचन ऐकता त्या आत्म्याने भरून जाऊन पवित्र आत्म्याने बाप्पा. आणि तुमचं मान गौरव द्या बाप्पा. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God has been so kind to us. खरोखरच परमेश्वर चांगला आहे. Amen. So, as we begin this book of Romans, रोमकरास पत्र आपण पाहत असताना, a very interesting things keep on coming as we keep on reading the book of Romans. And if you see that the book of Romans, of course it is written by Apostle Paul. प्रेषित पौलाने हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. आणि as a matter of fact, this letter is one of the longest book in the New Testament. नव्या करामधलं सर्वात मोठं पुस्तक जे आहे ते म्हणजे रोम करास पत्र आहे. And the book of Romans हे प्राचीन मंडळीसाठी इतकं महत्त्वाचं होतं की या 16 अध्यायांमध्ये इतकं देवाचं गहन ज्ञान आहे की ज्यांनी रोम करास पत्र वाचलं त्यांचं जीवन पूर्णपणे देवाच्या आत्म्याने बदलून गेलं आहे. आणि रोम करास पत्र हे जुन्या कराच्या किंवा प्राचीन मंडळीसाठी इतकं महत्त्वाचं होतं की ह्या पुस्तकाद्वारेच मार्टिन लुथरचं जीवन बदललं. ज्या मार्टिन लुथर डार्क क्लस्टर रूम मध्ये बसले असताना मार्टिन लुथरचं लक्ष रोम करास पत्र पहिला अध्याय 17 वचन की नीतिमान तर विश्वासाने जगेल. The just shall live by faith. Just a small example to you. When Martin Luther read this verse when he was in a dark room in Germany, at that moment when he read this, the just shall live by faith, his life was completely transformed and Reformation started in Germany. आणि जर्मनी मध्ये आपण पाहतो मार्टिन लुथर सारखा एक महान योद्धा, a firebrand who began his ministry on Reformation, की नीतिमान विश्वासाने जगेल. आणि हा विश्वासणारा कर्मांनी नाही, हा विश्वासणारा धर्माने नाही, पण विश्वासणारा तर विश्वासाने जगेल. जेव्हा देवाच्या आत्म्याने रोम 1:17 मार्टिन लुथरला जेव्हा दृष्टीच्या समोर आणलं, त्या मार्टिन लुथरनी या ख्रिस्ती आपण पाहतो ख्रिस्ती इन अ ख्रिश्चन वर्ल्ड जगामध्ये एक मोठं रिवायवलचं पाऊल जर्मनीमध्ये सुरू झालं. आणि त्याच्यामध्ये प्रोटेस्टंट धर्म सुरू झाला. कारण की तोपर्यंत सर्व कॅथॉलिसिझम म्हणजे राणीचं ऐकत होते, परंतु आता त्यांना कळलं की देवाचं वचन सांगतं आम्ही कर्मांनी नाही, आम्ही धर्मानी नाही, आम्ही चांगल्या गोष्टी करून नाही, किंवा देवाला खुश करण्यासाठी आम्हाला मुंडन करायची गरज नाही, का आम्हाला कुठल्या अर्पण करायची गरज नाही. येशूच शेवटचं अर्पण आहे आणि नीतिमान तर विश्वासाने जगेल.
इतकंच नाही, मार्टिन लुथर नंतर क्रायसोस्टॉम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिओलॉजियन एव्हर द वर्ल्ड हॅड, क्रिसोस्टोम त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात. ही वॉज अ बिशप ऑफ हिपो बट ही लिव्ड इन जेरुसलम. आणि येरुशलेम मध्ये असं म्हणतात की क्रिसोस्टोम नी एका लहान मुलाच्या मुखातून ह्या 2 ओळी ऐकल्या रोम करासपत्राबद्दल. त्याचं आकर्षण इतकं वाढलं की क्रिसोस्टोमनी रोम करासपत्राचा अभ्यास आणि वाचन रात्रंदिवस केलं. आणि क्रिसोस्टोम हा मंडईच्या इतिहासामध्ये इतकी प्रभावी व्यक्ती आहे की विविध डॉक्ट्रिन्स आहेत किंवा सब आपण पाहतो मूलभूत सिद्धांत जे आहेत क्रिसोस्टोमनी या ख्रिस्ती मंडईला दिलेले आहेत. कशामुळे? रोम करासपत्र वाचल्यामुळे. इतकंच नाही, अजून एक देवाची थिओलॉजियन आहे, त्यांना विसरलो मी, आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की ते नेहमी रोम करासपत्र हॉलिडे बुक म्हणून वापरतात. याचा अर्थ काय? की ते म्हणतात की जेव्हा पण मी एकटा असतो, आराम करत असतो, त्यावेळेस मी रोम करासपत्र सारखं वाचत असतो. माझ्या बहिणो भावांनो, याच पुस्तकाद्वारे जुनी मंडईचं पूर्ण रूपांतर झालं. याच पुस्तकाद्वारे प्रोटेस्टंट धर्म आला. याच पुस्तकाद्वारे बिशप ऑफ हिप्पो क्रिसोस्टोम आले. याच पुस्तकाद्वारे मोठे मोठे सेवक घडले. आणि हे पुस्तक मला विश्वास आहे 2020 मध्ये भारताच्या मंडईला बदलणारं पुस्तक आहे. हालेलुया टू द लॅम्ब. I believe if God can do wonders for Martin Luther, if God can do wonders for Chrysostom, Bishop of Hippo, if God can do wonders for the man of God in Europe and Western Eurasia, why cannot God do that in India? मला विश्वास आहे की भारताच्या विश्वासदारांना सुद्धा रोम करासपत्राद्वारे एक मोठं संजीवन या भारत जगामध्ये येणार आहे. हालेलुया. इट विल नॉट स्टार्ट बाय एनी कम्युनिटी. कुठल्या कम्युनिटीद्वारे नाही, त्या कुठल्या व्यक्तीद्वारे नाही. हे मोठं संजीवन आहे देवाच्या वचनाद्वारे येणार आहे. हालेलुया. जेणेकरून सर्व गौरव, सर्व सन्मान, सर्व आदर, सर्व महिमा देवाला आणि देवाला जाओ येशूच्या द्वारे. आमेन. हालेलुया. सो वी सी की रोम करासपत्र ज्या पौलाचं दमिश्कच्या रस्त्यावरती रूपांतर झालं, when apostle Paul made an encounter with the Lord Jesus Christ on the road of Damascus, his life was completely transformed. 3 years in Arabia. गलती करासपत्र दुसरा अध्याय म्हणतं की संत पौल 3 वर्ष अरबस्थानात होते. त्यांच्या अरबस्थानाचा प्रवास बायबल मध्ये लिहिलेला नाही. व्हॉट हॅपन इन अरेबिया, द बायबल इज सायलेंट. व्हॉट हॅपन इन अरेबिया, द हेवन वॉज वॉचिंग, द एंजल्स वर प्रोटेक्टिंग, अँड अपोस्टल पॉल वॉज गेटिंग ट्रान्सफॉर्म, प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, लाइन अपॉन लाइन, हियर अ लिटिल, देयर अ लिटिल, माइंड इज रिन्यूड, heart is transformed, life is changed, and you see Apostle Saul, who was earlier a Saul from Tarsus, has become a Paul missionary to Gentiles. Hallelujah. आणि म्हणून माझ्या बहिणो भावांनो, संत पाऊल हे पत्र सेंक्रिया, I hope I'm spelling it correct in English, it's called Cenchrea, Cenchrea. सेंक्रिया ही जागा कोरिंथ या ठिकाणी होती. आणि कोरिंथ या ठिकाणातून सेंक्रिया भागातून संत पाऊल रोम करासपत्र लिहित आहे. इनफॅक्ट पॉल इज नॉट रायटिंग, ही इज रायटिंग टू टर्टुलियस. आणि पाहतो की संत पाऊल हे पत्र डिक्टेट करतात आणि कोणतरी दुसरं हे पत्र लिहित आहे. अँड इफ यू सी द हिस्ट्री वेअर दिस लेटर वॉज रिटन, रोम करासपत्र सेंक्रिया या भागातून लिहिलं आहे. आणि त्या भागाचा इतिहास असा सांगतो की सेंक्रिया ही जागा रेड लाईट एरियाची होती. नाउ वी डू नॉट नो इन सच अ शेडी प्लेस such a powerful letter was written. Maybe God was trying to transform Cenchrea in Corinth to be an example that what God can do, no man can do it. Hallelujah. It was written from Cenchrea, which is completely a red light area. And if you see, as a matter of fact, Phoebe ही जुन्या मंडईची deaconess होती. Phoebe was a deaconess in the early church,
and she also came from Cenchrea. Imagine Cenchrea being a red light area. As a matter of fact, I don't want to step on dangerous lines by saying something wrong, but I don't know how Phoebe's life was changed when she lived in Cenchrea. Cenchrea में रहने के बावजूद फीबी जो है वो पहले क्या थी हम नहीं जानते हैं, परंतु सुसमाचार सुनने के बाद वो प्राचीन कलीसिया में सबसे पहली एल्डर, डीकन के बाद डीकनेस वो बन गई है. दिस कैन ओनली बी डन नॉट बाय ह्यूमन प्रीचिंग, नॉट बाय गुड टीचिंग, इट इज ओनली बी डन बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. अगर सेंक्रिया की जगह बदल सकती है तो आई कैन टेल यू बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस, no matter where you're staying, it's a red light area, it's a shady area, it's addicted area, no matter where you are, God can still do wonders for you. And I believe the book of Romans is so powerful. God will transform your life. Hallelujah. And that's why I just felt in my heart, Romans chapter 5, especially verse 1 says, Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And verse 2 says, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. Before I go further, I would like to lay one more foundation before I start building up this. The Roman church, or I can say the church in Rome was divided into three classes. It went through three changes. The first change was this: the church in Rome began with Jewish people. It was full of Jewish believers. As the time went by, a new leader came, Claudius Caesar. Claudius Caesar, being an immature ruler, he commanded all the Jews to leave Rome. And what happened after that? The second stage, what happened to the church in Rome? It became a mixed church where the Jews and the unbelieving Gentiles came together. And then you see, when the new ruler came, Nero brought a new revolution by saying, let all the Jews come back. Let all the Jews come back. And when the Jews came back, we see that the third change in the church of Rome was this: it completely became a Gentile church. The first thing we see, the church in Rome, it was completely Jewish believers in the church. Number two, it became a mixed church when Claudius Caesar brought this new strategy: let all the Jews leave Rome. Now what happened? When the Jews left Rome, wherever they went, they were successful in business. And Nero, very strategically, he ordered all the Jews to come back. And when all the Jews came back, they brought their business skills to Rome. Now let me take a pause and try to tell you something, put a light on this. If you see, just like Nero, Hitler did the same thing. And that's why you see, Jews were already running businesses in the world. He invited Jews first to Germany, and then Hitler was the first one to start the Autobahn, and after that you see, he was the first man in Germany to start the vehicle called Volkswagen, which we call Volkswagen. It is not Volks in German, you speak VS as for, so it's Volkswagen. So Hitler did the same strategy as you see Nero did.
And the third change in the church of Rome is this: first the Jewish church, then the mixed church, and now completely the Gentile church. अब यूनानी लोग भी आने लगे, अविश्वासी लोग रोम की कलीसिया में आने लगे। नंबर एक, रोम की कलीसिया पूरे यहूदी विश्वासियों से भरी थी। नंबर दो, क्लॉडियस सीजर आ गया, उसने यहूदियों को बाहर निकाला रोम से, और उसके बाद मिक्स हो गया, वो यहूदी विश्वासी भी आ गए और यूनानी भी आ गए। उसके बाद फिर नीरो आ गया। नीरो ने क्या किया, सारे यहूदियों जो बिजनेस कर रहे थे उनको वापस बुलाया, और बाद में देखते हैं कि उसके बाद अब रोम की कलीसिया ये पूरे अविश्वासियों से, मतलब जो पहले अविश्वासी थे अब विश्वासी हो गए, उनसे पूरी भर गई। एंड दैट्स व्हाई यू सी इन द बुक ऑफ रोमन्स देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ द चर्च, द डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च, एंड देन यू सी द प्रीसेप्ट ऑफ द चर्च। सो एज वी गो फर्दर, you see, there is a saying in English, all roads lead to Rome. सारे रास्ते रोम में जाते, ऐसी कहावत थी। And this saying just didn't come overnight, but back in those days when this letter was written, Rome was one of the most powerful country in the world. ये जो कहावत थी सारे रास्ते रोम जाते हैं, ये ऐसी एक रात में किसी के मन में आया और लिख गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इतिहास ऐसा कहता है कि उस जमाने का रोम जो है, एक टाइम में रोम की सत्ता पूरे दुनिया में थी और इतनी स्ट्रांग थी कि लोग रोम की सत्ता से कांपते थे। और रोमन लोगों ने ही सबसे पहले कॉलोसियम की शुरुआत की, रोमन लोगों ने ही रास्ते बांधने की शुरुआत की, रोमन लोगों ने ही सूली पर लटकाने की प्रथा ले आए। रोमन लोग जो थे वो काफी डिसिप्लिन थे, इसलिए रोमन सोल्जर्स यीशु मसीह के कब्र के बाहर पहरा दे रहे थे और वो सो रहे थे, और उनको झूठ बोलने को कहा कि तुम सो रहे थे, क्योंकि रोमी सिपाही जो है वो अपनी ड्यूटी में कभी सोते नहीं है। तो रोम ने अपने कारकिर्द के बारे में इतना बड़ा दुनिया में बेंचमार्क रखा कि रोम के नाम सुनकर ही लोगों को डर लगता था। और इसीलिए देखते हैं कि ऐसे ही जगह में जहां पर इतना डोमिनेंट है, इतना बिजनेस बढ़ रहा है और इतना परसिक्यूशन है, सताव है, इन सताव के बावजूद भी परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा एक खत लिख रहा है। वो खत आने वाले कलीसिया में क्या बदलाव लाएगा वो परमेश्वर जानता है, पिता जानते हैं, पुत्र जानते हैं, पवित्र में जानते हैं और पौलुस जानते हैं। और इस खत को जब लिखा गया था, फीबी जो डिकनेस थी उसके हाथों के में फीबी ये खत सेंक्रिया से लेकर रोम के विश्वासियों को लेकर एक दिन में नहीं, 2 दिन में, शायद काफी महीने लगे होंगे, परंतु फीबी के हाथ में वो जो उसे कहते स्क्रोल्स थे वो लेके जा रही थी। फीबी नहीं जानती थी कि उसके हाथों में क्या रखा है, पर फीबी ये जानती थी कि इस लेटर में ऐसा कुछ तो है कि ये लेटर पढ़ने के बाद मेरा जीवन और बदल जाएगा, रोम की कलीसिया बदल जाएगी। और इसीलिए फीबी के द्वारा, एक औरत के द्वारा, ना प्लीज रिमेंबर दिस, एक औरत के द्वारा परमेश्वर ने रोम की कलीसिया को ये खत उसके द्वारा भेजा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। सो दैट्स व्हाई यू सी very interestingly as we go further, Apostle Paul in Romans chapter 5, रोम की पत्री 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रेरित पौल जो है कि कलीसिया को लिखते हैं कि हमारा उद्धार जो है, हम निष्पाप जो है कर्मों से नहीं, हम विश्वास के द्वारा हो गया है। अब ध्यान में रखिए, यहूदियों के लिए यह समझना काफी मुश्किल था। Now let me tell you why it was difficult for the Jews to digest this. यहूदी लोग जो थे वो हर एक मनुष्य को 4 क्लासेस में डिवाइड करते थे। The Jews divided men into 4 classes. Very quickly, number 1, what was the thought process? The just class.
जो नीतिमान लोग हैं उनका कहना क्या है? नीतिमान लोग कैसे कहते हैं? जो मेरा है वो मेरा है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है. दैट मीन्स यू आर अ जस्ट मैन. नंबर 2, इफ यू सी, यहूदियों के लिए क्या था? द अकोमोडेटिंग क्लास. वो क्या कहता है कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है. दिस इज द अकोमोडेटिंग क्लास फॉर द जूइश पीपल. नंबर 3, द पायस. इसका मतलब धार्मिक लोग. धार्मिक लोग का क्या कहना था? जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा. प्रेज द लॉर्ड. सो दिस इज द फोर्थ क्लास, द पायस क्लास, द गॉडली क्लास. एंड द अनगॉडली क्लास, द फोर्थ क्लास इज दिस, कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है. सो फॉर द जूइश पीपल, यहूदियों के लिए इन 4 क्लासेस में वो लोगों को बांटते थे. और देखते हैं कि इसीलिए जब परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा इस पत्री को लिखा था, तब यहूदियों के लिए इसे स्वागत करना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि उनके लिए धार्मिक लोग और अधर्मी लोग, यहूदी लोग और सामरी लोग, यहूदी लोग और यूनानी लोग, ये कभी एक साथ आ नहीं सकते. परंतु परमेश्वर का ज्ञान सारे ह्यूमन ज्ञान से परे है. और देखते हैं कि पौलुस ने जब ये खत लिखा तो उसने एक बार कहा कि साल्वेशन इज फॉर एवर. हालेलुया. उद्धार हमेशा के लिए है. आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस, once saved is always saved. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बार तुम बचा हो गया हमेशा के लिए हो गया. आई एम टेलिंग यू दिस, salvation is forever. उद्धार हमारा हमेशा के लिए है. Praise the Lord. And that's why you see in Romans chapter 5 verse 1 and 2, the first thing we are going to learn is this very quickly. Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. People of God, very quickly, the first thing we see here, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्यार अनकंडीशनल है. हालेलुया. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के प्यार में या प्रेम में हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं है. कंडीशन मतलब क्या है? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा. ध्यान में रखिए, God has loved you and me, the entire human race, unconditionally. Praise the Lord. And this unconditional love, Romans chapter 5 verse 6 देखेंगे. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको कुछ समय के लिए प्रेम नहीं करते हैं. सिर्फ आप अच्छे बर्ताव करेंगे तो ही प्रेम करते हैं. परमेश्वर ने आपके साथ अनंत काल का प्रेम किया है. हालेलुया. God has loved you regardless. The Bible speaks to us, for when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली पर मर गया. God will not love you more if you start praying more. God will not love you more if you start studying the Bible more. ध्यान में रखिए, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, these are individual spiritual growth. परंतु परमेश्वर ने आपसे, आप ज्यादा बाइबल पढ़ते हो इसलिए प्यार नहीं किया है. आप ज्यादा प्रार्थना करते हो इसलिए प्रेम नहीं किया है. परमेश्वर ने आपको और मुझे, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है. प्रेज द लॉर्ड. व्हेन वी वर येट सिनर्स, क्राइस्ट लव्ड अस. और परमेश्वर का प्यार दिन ब दिन आपके लिए बढ़ता नहीं है,
परमेश्वर का प्यार जब आप पापी थे वैसा ही है और अब भी वैसा ही है. His love for you remains the same. Hallelujah to the Lamb. Praise God. और इसीलिए Apostle Paul tells us the unconditional love of God. ध्यान में रखिए, what does the love of God has done for you? परमेश्वर के प्रेम ने आपके लिए क्या किया है? John chapter 3 verse 16. यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 13 अध्याय 16 वचन. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर के प्यार ने आपके लिए क्या किया है? Galatians chapter 2 verse 16. The Bible speaks to us, and we have believed in Christ Jesus so that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because by the works of the law no human being will be justified. What does the love of God has done for you? The Bible speaks to us in the book of Colossians chapter 2 verse 14 and 15. Having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it, blotting out the handwriting of ordinances which were against us, which were contrary to us, took it out of the way, nailing it to his cross. What does the love of God has done for you? परमेश्वर के प्यार ने आपके लिए क्या किया है? आप कहते हो परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, परमेश्वर की प्रार्थना नहीं सुनता है. ध्यान में रखिए, परमेश्वर ने आप और मैं, हम जब पापी ही थे तब यीशु मसीह के मन में तुम्हारा और मेरा विचार था. While we were yet sinners, Christ died for the ungodly. परमेश्वर के प्यार ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है? Hebrews chapter 12 verse 2, it says, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is now sat down at the right hand of God. What does the love of God has done for you? The Bible speaks to us in the book of Hebrews. It says, wherefore he is able to save them to the uttermost who come unto God by him, seeing that he ever liveth to make intercession for us. Hallelujah. परमेश्वर के प्यार ने हमारे लिए क्या किया है? आप क्यों कहते हो परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपसे अनकंडीशनल प्रेम किया है. भले तुम उसे भूल जाओगे पर वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा. यशायाह कहता है कि देख मैंने अपने हथेली में तुझे खोद के रखा है. परमेश्वर ने आपका चित्र और मेरा चित्र उसके हथेली में खोद के रखा है. परमेश्वर का प्यार इतना है, रोमियो की किताब 8वां अध्याय कहता है 37 से आगे बाइबल कहती है कि परमेश्वर के प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता. ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई व्यक्ति, ना कोई देवदूत या कोई भी परमेश्वर के प्यार से हमें अलग नहीं कर सकता. वो प्यार सिर्फ इसी दुनिया में नहीं, ये लाइफ में नहीं, परंतु मरने के बाद भी हम अनंत काल में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. हालेलुया. परमेश्वर का प्रेम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तुम 10 घंटा प्रार्थना करो मैं और प्यार करूंगा. परमेश्वर के प्यार में कोई एग्रीमेंट नहीं है. तुम 40 दिन उपवास करो मैं और प्रार्थना करूंगा. परमेश्वर ने आप जैसे है वैसे आपको चाहता है. उसके प्यार में दिखावा नहीं है, उसके प्यार में कोई बड़प्पन नहीं है, उसके प्यार में कोई खोट नहीं है. उसका प्यार उजियाला है, उसका प्यार में सत्य है. और इसीलिए बाइबल कहती है सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा. उसका प्यार धीरज रखता है, उसका प्यार कभी अंधेरे भागों में जाता नहीं है, उसका प्यार कभी झूठ को ढकता नहीं है पर झूठ को प्यार से एक्सपोज करता है. उसका प्यार यह कहता है कोई तेरी एक गाल में मारेगा दूसरा गाल भी देना, कोई 1 मील जाए तू 2 मील जाना. आज वही परमेश्वर, आप भले कितने भी पापी हो, वो आपको और एक बार पुकारा है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैंने तेरे पे प्यार, तू धर्मी बने इसलिए नहीं किया है, मैंने तुझसे प्यार, तू मेरे पास आ जाए और उद्धार पाए, इसलिए परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है ताकि आप भी अनंत काल में परमेश्वर के जीवन को पाए और आप भी परमेश्वर की संतान बन सके. प्रेज द लॉर्ड. दिस इज हाउ द अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड. हालेलुया.
इसीलिए अपोस्टल पॉल when he wrote this letter, lives were changed, minds were renewed and revival came in Rome. हालेलुया। और रोम में इतनी बड़ी बेदारी आ गई कि रोमन सत्ता जो थी, जो सीजर था, जो पायलट था, उसको सामना करने के लिए हमें शस्त्र की जरूरत नहीं, हमें कोई युद्ध की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन की ताकत की जरूरत है। और यही वचन खाली वापस नहीं आता है। और इसीलिए रोम की कलीसिया को बार बार कहा गया, विश्वासी तो विश्वास से जिएगा, और तुम्हारा उद्धार जो है वो अनुग्रह के द्वारा, कृपा के द्वारा हुआ है, कर्मों से नहीं। That's why it was difficult for the Jews to digest. God has not called you because you were godly. God has called you even when you never heard the gospel in your life. Your name was already in his mind. Hallelujah. Let's go further. Paulus क्या कहता है? Rome 5 में please. The second thing we see, verse 2, 3 and 4, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and experience hope. People of God, Amen. पौलुस कहता है कि हम सताव के समय में भी हम आनंद कर सकते हैं। And that's why I will go to my next point. We see पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्यार अगर तुम जानोगे तो परमेश्वर का प्यार, रोम किताब 5वां अध्याय 7 और 8 वचन, Romans chapter 5 verse 7 and 8, please church, the Bible speaks to us. Pay attention to this. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Verse 8 please. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Please pay attention to verse 8. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. परमेश्वर ने अपने प्यार को ऐसा जताया कि हम जब पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली पर मर गया. The first we saw the unconditional love, the second we see the incomparable love. Hallelujah. परमेश्वर का प्यार कभी किसी से कंपेयर नहीं हो सकता. Amen. You cannot compare the love of God with the worldly love. You cannot compare the love of God with human standards. You cannot compare the love of God with something a carnal mind has to produce in a film. You cannot compare the love of God by a poem written by an unsaved man. The love of God is pure. The love of God is unconditional. परमेश्वर के प्यार को जिसने जाना है, वो जिसने दिल से कहा है, हे परमेश्वर मैं तुझसे धन नहीं मांगता, हे परमेश्वर मैं तुझसे घर नहीं मांगता. Lord, you are so beautiful. I don't ask for 1,000 islands. I don't ask for houses of wealth. I don't ask for anything else. Lord, you are more precious than silver, more costly than gold, more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. खुदावन तू चांदी से खूब महंगा है, सोने से भी ज्यादा तू बहुत अनमोल है, और हीरो से भी ज्यादा खूबसूरत है, और तुझसा मुझे कुछ नहीं भाता है. दिस इज what happens when the love of God take control over you. Hallelujah. जब परमेश्वर का प्यार तुम्हारे दिल में आता है तो मैं आपको दिल से कहता हूं, first we saw the unconditional love of God. Second we see Romans chapter 5 verse 7 and 8. Verse 8 says, but God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hallelujah. This is the love of God, the incomparable love of God. And this incomparable love, what will do to you? Let's turn further, please.
what does the incomparable love of God will do in your life. Romans chapter 12 verse 1 and 2. जब परमेश्वर का इनकम्पेरेबल प्यार आपके जीवन में आता है तब आपका जीवन कैसे बन जाता है. Romans chapter 12 verse 1 and 2, the Bible speaks to us. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. इसीलिए जब परमेश्वर का इनकम्पेरेबल प्यार आपके दिल में आता है तब आप स्वयं दिल से कहते हैं कि परमेश्वर, मैं मेरा शरीर तुझे जीवित, पवित्र और लुभावना ऐसा बलिदान तुझे मैं समर्पित करता हूं. The love of God will not force you. The love of God will not make you to do things. The love of God will compel you, will encourage you, will lead you to surrender your life to Jesus, to live a pure life. People of God, अगर तुम आज दुनिया में देखोगे, दुनिया का प्यार ऐसा है कि मुझे तुझसे क्या फायदा मिलता है, वो फायदा लेने के लिए वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. पर जब उस व्यक्ति का फायदा आपसे निकल जाएगा, वो आपको पूछेगी भी नहीं, देखेगी भी नहीं, पर आपको देखकर वो चिड़चिड़पन करेगी, आपको देखकर आपको घृणा करेगी. क्यों? क्योंकि उसका फायदा आपसे हो गया है. दुनिया के प्यार की रीत ऐसी है, मुझे इससे क्या मिलेगा प्यार करने से, या मेरा फायदा क्या है, मुझे कितना इंटरेस्ट है, ये सब देखता है. People may love you because you may look pretty or you may look handsome. People may love you because you may sing well, you have a lot of money with you, you drive a nice car. People may love you because of your verbal skills, because you're something special out of the norm, or people may love you genuinely. But let me tell you, the moment you do something wrong which they don't want you to do it, and do it purposely, you'll understand the ones who loved you so much, now they hate you very well. मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया के प्यार की रीत इतनी बुरी है, हम रोज देखते हैं, रोज पढ़ते हैं कि ये दुनिया के प्यार में क्या होता है. कोई एसिड फेंकता है, कोई कुछ और करता है, कोई गला काटता है. मेरे भाई और बहनों, आपने परमेश्वर से पहला प्यार नहीं किया है, परमेश्वर ने स्वयं पहले आपसे प्यार किया है. That's why John chapter 15 says, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go forth and bring forth fruit and let your fruit remain. Are you looking for love in life? क्या आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता? One of the greatest battles in this 2020, or not 2020, but this century is this: loneliness. Are you battling loneliness today in your life? आपको लगता है कि आप अकेले हो, भले आपके एरिया में बहुत लोग आपके आजू बाजू में है, घर में रहते हैं या घर में नहीं भी रहते हैं. क्या आपको लगता है कि आप अकेले हो, अकेलापन महसूस करते हो, कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता है? और आर यू बिट्रेड इन लव? क्या किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है? इफ यू आर दैट पर्सन, I would encourage you today this afternoon. परमेश्वर का प्यार कहता है, देख, मैंने तुझ पे अनकंडीशनल लव किया है. इस प्यार में कोई स्टेटमेंट नहीं है कि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा.
ये प्यार मैंने आज की लाइफ की नहीं, अनंत काल के लिए किया है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, इफ यू आर लुकिंग फॉर लव, अगर आप प्यार को कोई पिक्चर में देख रहे हैं, अगर आप प्यार सीखने के लिए या शायद कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, सच्चा प्रेम क्या हो रहा है, या कोई गाना सुन रहे हैं, लेट मी टेल यू, नो टेलीविजन सेट, no filmmaker, no producer, no director, no worldly singer, no worldly composer can ever talk about the greatest love in history was displayed on the cross. सबसे पहला, सबसे अनमोल प्यार का प्रदर्शन किसी कविता में नहीं हुआ, किसी खत में नहीं हुआ, किसी किताब में नहीं हुआ, किसी नॉवेल में नहीं हुआ, किसी पिक्चर में नहीं हुआ. The greatest love in mankind was displayed by a man with the splinters of the cross, who was pierced in his hands, pierced in his nails, crowns on his son's head, and he was marred and beaten up and crushed and bruised. And what kept Jesus on the cross? यीशु मसीह को सूली पर किसने रोक के रखा है? तुमने और मैंने. वो हमसे प्यार करता है. 3 nails, one for you, one for me, and one for those who are on the way to paradise of heaven. Hallelujah. आपके प्यार ने यीशु मसीह को सूली पर रोक के रखा है. हालेलुया टू द लैम्ब. और उसी प्यार ने कहा है, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये जो कर रहे हैं वो नहीं जानता. अगर आपसे परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं कर देते तो सचमुच परमेश्वर 40,000 देवदूत को बुलाकर अपनी छुटकारा कर सकते थे, वो निकल सकते थे या शैतान को हरा सकते थे. पर आपके लिए और मेरे लिए हमारा प्यार यीशु मसीह को सूली पर रोक के रखा है. हालेलुया. It is the greatest love was displayed on the cross. Hallelujah. मेरे भाई और बहनों, that's why the Bible speaks, Romans chapter 5 verse 8, for God commended his love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. हालेलुया. लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं? आप अच्छा गाना गाते हो. लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं? आप अच्छा प्रचार करते हो. लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं? आपके पास ज्यादा पैसा है. लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं? आप खूबसूरत हो. लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं? आप हैंडसम हो. पर यीशु मसीह कहता है, तुम हैंडसम भी नहीं थे, तुम ब्यूटीफुल भी नहीं थी, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं था, हम पापी थे, तो यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है. अगर यीशु मसीह मुझसे पाप के जीवन में प्यार करता है, अब तो मैं पाप में नहीं हूं, मैं अंधकार में नहीं हूं, मैं उजाले में हूं, तो मुझसे सचमुच परमेश्वर, अभी भी मुझसे परमेश्वर प्यार करता है. हालेलुया. ही लव्स यू, ही लव्स यू, ही लव्स यू दिस आफ्टरनून. हालेलुया. वो आपको कभी खाली पेट नहीं छोड़ेगा. ही विल नेवर लीव यू हाफ डन. प्रेज द लॉर्ड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई एंड विद दिस प्रीएम्बल, आखिरी बार देखेंगे. The third thing, the first we saw the unconditional love, second we saw the incomparable love, and third we see the product of love. प्यार का उत्पादन क्या है? Please go along with me, Romans chapter 5 please. Romans chapter 5 from verse 10, I'll read it to you. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Verse 15, we'll finish with this. 15 vachan. But not as the offense, so also is the free gift.
For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. The third thing and the last thing, the first, the unconditional love of God. Second, the incomparable love of God. And the third, the product of the love of God is the grace of God. हालेलुया। और परमेश्वर के प्यार का उत्पादन क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। Amen. People of God, Bible speaks to us, for by grace we are saved through faith, not of works, lest any man should boast unto it. Hallelujah. Amen. And before we end, ये परमेश्वर का अनुग्रह इतना अच्छा है। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है, कि जब तू कमजोर है मेरी कृपा तेरे लिए ताकत है। 2 Corinthians 12:9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. For when I am weak, then I am made strong. और यही परमेश्वर के प्यार के कारण आज तुम पर और मुझ पर कृपा हुई है, अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और वही प्यार आज आपको पुकारा है। People of God, God's wrath is not upon you. Because of His grace, because of His love, we have escaped from wrath and we have come to God's glory. Hallelujah. The Bible tells us the wrath of God is revealed against all ungodly, against unrighteous, unbelieving people of God. God loves you today, not because for your good works, not because you prayed so much last night, not because you fasted last week. God loves you because you have believed on His Son Jesus Christ. और वही प्यार जो है यीशु मसीह का आप पर, आज वही प्यार आपको पुकार रहा है। फिर एक बार आज सूली की ओर आ ले। फिर एक बार अगर आपको खाली महसूस हो रहा है, यीशु मसीह आपको पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, शौहरत है, दौलत है, आपके घर में बहुत लोग भी है, परंतु आज फिर भी अगर आप खाली महसूस करते हो, तो यीशु मसीह का वचन कहता है, Romans chapter 5 verse 5, the hope in God does not disappoint us, because God has poured His love into our hearts through the Holy Spirit given to us. आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्यार को आपके दिल में उंडाला है और उंडालेगा अगर आप दिल से कहेंगे कि यीशु मसीह में प्यार की तलाश किसी व्यक्ति में नहीं करूंगा, नए घर में नहीं करूंगा, या नए किसी कपड़े में नहीं करूंगा, परंतु परमेश्वर का प्यार कुछ करने से नहीं आता है। यू डोंट हैव टू अटेन गॉड्स लव, यू टू रिसीव गॉड्स लव। परमेश्वर को प्यार को आप स्वीकारो और दिल से कहो कि सचमुच परमेश्वर, मुझे कोई व्यक्ति प्यार नहीं दे सकता। लव इज नॉट अ फीलिंग, लव इज अ पर्सन, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। एंड दैट पर्सन सेज, बिहोल्ड, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and opens the door of his heart, I will come into him and sup with him and he with me. Today many of us, many of the believers and unbelievers have tarnished the description of love. कई लोग तो प्यार क्या है जानते भी नहीं है। शायद बॉलीवुड उन्हें सिखाता है, हॉलीवुड दिखाता है, दुनिया के लोग गाकर उन्हें प्यार सिखाते हैं। मेरे भाई और बहनों, सच्चा प्यार कभी आपको सुसाइड नहीं करने को कहेगा। सच्चा प्यार आपको कहीं नहीं कहेगा कि सब कुछ छोड़कर या सब कुछ सबको काट कर तू मेरे पीछे आ। सच्चा प्यार जो है वो ये कहता है, तू जैसा है तू मेरे पास आ। हालेलुया। सच्चा प्यार ये कहता है कि आज भी मैं आपसे उतना ही प्रेम करता हूं जो मैंने आपसे पहले किया था। हालेलुया।
सच्चा प्यार आपके पैसों से प्यार नहीं करता है, सच्चा प्यार आपकी शोहरत से प्यार नहीं करता है, सच्चा प्यार आपकी कला से प्यार नहीं करता है। सच्चा प्यार कहता है तू पापी ही था तब मैंने आपसे प्रेम किया है। सच्चा प्यार कहता है भले तू मुझे छोड़ देगा पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। सच्चा प्यार यह कहता है कि मैं आज कल और युगानुग एक जैसा हो। अगर मैंने तुझे कल खाना दिया था आज भी दूंगा, आज दिया है तो कल भी दूंगा। सच्चा प्यार यह कहता है भले तू मुझसे कितना भी दूर जा मैं तेरी राह देखूंगा। जैसे कि उड़ाव पुत्र के पिताजी ने अपने बेटे के लिए शायद कुछ दिन नहीं बहुत महीने गुजर गए होंगे, वो राह देख रहे थे मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। आज वही स्वर्गीय पिता आपकी राह देख रहा है। बेटा तू आज जहां पर भी है, दुनिया की भीड़ में खोया है या किसी प्यार में खोया है, आज वही पिताजी आपकी बाट जो रहे हैं और वो राह देख रहे हैं। आपका नाम ले लेकर यीशु मसीह आपको पुकार रहा है। इस दुनिया के ड्रग्स में वो प्यार नहीं है, इस दुनिया के कोई फैशन में प्यार नहीं है। वो प्यार इतना पवित्र है, वो प्यार आपको मरते मरते बचाता है, वो प्यार आपको गड्ढे से बाहर निकालता है, वो प्यार आपको अंधकार से निकालकर ज्योति में ले आता है, वो प्यार आपको अधिकार देता है कि आप यीशु मसीह को सिर्फ मसीहा नहीं अपने अब्बा पिता कहकर उसे पुकार सके। आज वही प्यार आपको कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी, आज मैं तेरी सूरत अपने हथेली में खोद के रखा हूं, मैं तेरे लिए देख स्वर्ग में जाकर तेरे लिए घर बना रहा हूं। आज वही प्यार कहता है हे बहुत से परिश्रम में लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जहां पर भी आप हो क्यों ना अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने दिल को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और सचमुच कहेंगे कि परमेश्वर मुझे लगता था कि ये व्यक्ति मुझे प्यार करेगी, इस व्यक्ति में सच्चा प्यार है, इस चीज में सच्चा प्यार है। या शायद अब अकेले हो, आपको अकेलापन लगता है, आपको लगता है कि जिससे मैंने तो आपने प्यार किया था उसने आपको धोखा दे दिया है, या आपको लगता है कि दिस इज लाइफ और शायद ऐसा ही मेरे जीवन में होने वाला है। दिस इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स यू टू से। आज परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तेरे कर्म में ऐसा लिखा है। He loves you, my brother. He loves you, my sister. He loves you. He loves you the way you are. He has not come to curse you. येशू तुम्हाला शाप देणे आला नाही, तुम्हाला आशीर्वाद देणे आलेला आहे। जिकडे तुम्ही असाल डोळे बंद करूया, आपले हाथ वर करूया, आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे और दिल से कहेंगे मेरा दिल बनी तेरा से। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। इस वक्त यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। जहां पर भी आप अपने हाथ उठाइए, मैन यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। Come on, sing with me. यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ
खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा। खोकर आत्मा को तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुम्हें यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले ले कर, जहां पर भी आप दिल से कहो मुझे यीशु, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले ले, तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा। खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा। खोकर आत्मा को तू आजा यीशु के पास, तुम्हें यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुम्हें यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा। जहां पर भी आप हो, ये हम गाएंगे, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। मेरे भाई और बहनों, आप शायद सच्चे प्यार की तलाश में हो, या किसी ने प्यार में आपको धोखा दे दिया है, अब अकेला महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि शायद यही प्यार की रीत है, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे भाई और बहनों, बाइबल कहती है अगर तुम दिल में विश्वास करोगे कि पिता ने यीशु मसीह को मुर्दों जीवित किया है और मुख से कबूल करोगे यीशु ही प्रभु है, आज यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप अच्छे हो इसलिए नहीं, आप धर्मी इसलिए नहीं, आप अधर्मी थे, फिर भी यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। उसके प्यार में आज धीरज है, उसके प्यार में वो आपकी राह देख रहा है। मेरे भाई और बहनों, या आपको लगता है ये शायद आप किसी लत में हो, किसी आदत में हो, किसी प्यार के रैकेट में फंस गए हो, आज यीशु मसीह आपका नाम लेके पुकार रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आ, सच्चा प्यार मैं तुझसे करता हूँ। वो अनंत काल का प्यार है। वो आज से आपको कहता है, अगर तू मेरे पास आएगा, अपने धिक्कार कर, सूली को उठाकर, तो देख मैंने तेरे लिए स्वर्ग में एक जगह बनाई है, वहां पर उसका प्यार आपको याद आता है। Come on for the last time. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुम्हें यीशु बुला रहा। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें,
यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दिल की गहराइयों से वो रखेगा तुमको पास, दिल की गहराइयों से वो रखेगा तुमको पास। बिना किसी भेद के तैयार उधारक वो सच्ची सुरक्षा देता तुम्हें, बिना किसी भेद के तैयार उधारक वो सच्ची सुरक्षा देता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखित हो वो शांति देगा तुम्हें, अगर तेरा दिल दुखित हो वो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। मेरे भाई और बहनों, there is a sister watching me right now. You have suffered lot of pains in your life because of your past history. God is calling you wherever you are. परमेश्वर आपको पुकार रहा है। ऐसा मत सोचना कि ये जिंदगी व्यर्थ हो गई, ऐसा मत सोचना कि आपने गलती से ले लिया, अब सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं नहीं, फिर एक बार परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, वो नई शुरुआत करना चाहता है। He wants to start one more time with you. This is not the end of your life. There's a new road which reaches to heaven. God has come down for you. He loves you unconditionally. Wherever you are, just lift your hands and tell him, Jesus, I give my life to you. यीशु मसीह, मैं अपना प्राण, आत्मा, शरीर, हृदय को, मेरे पूरे जीवन को आज से मैं यीशु के हाथ में समर्पित करती हूँ। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप किसी शराब के लत में हो, आप किसी ड्रग्स के लत में हो या किसी अगर लत में हो, तो यीशु मसीह का प्यार आपको पुकार रहा है, उसे छोड़ दो और यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही करने वाला है। Wherever you are, surrender your life to Jesus and tell Jesus, I come the way I am before you, बापा। जैसा मैं हूं वैसे आपके पास आता हूं। मैं धर्मी बनकर नहीं आना चाहता हूं, मैं जैसा हूं वैसा आता हूं। यीशु मसीह, मुझे छुटकारा दे दो जिंदगी से, मुझे छुटकारा दे दो, मुझे छुटकारा दे दो बापा। Father God, in Jesus' name, save that soul, save that family, उस परिवार को, उस मैरिज को पिता आप बना के रखना प्रभु यीशु मसीह। आज उस पति पत्नी में आपका प्यार देना प्रभु यीशु मसीह, और आपके प्यार से उस परिवार को भरना पिता। जिस घर में झगड़े हैं, जिस परिवार में झगड़े हो रहे हैं, आई बाइंड दैट डीमन बिहाइंड द नेम ऑफ जीसस। आई स्पीक द लव ऑफ गॉड इन एवरीबॉडीज हार्ट। होप इन गॉड डू नॉट डिसअपॉइंट अस, फॉर ही हैज poured his love in the hearts of the Holy Spirit given to us. पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य से उस परिवार को एक करना। हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। फादर,
As your word says in Romans chapter 5 verse 5, Lord, we speak your word, it says, my master. Lord, आपका वचन कहता है रोम 5:5 में कि प्रभु यीशु मसीह, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Father, in Jesus' name, I pray for your baptism of your love, Lord. आपके प्यार से सबके दिल को भरना, ताकि हम यीशु मसीह के चेले हैं इस भारत को देखने देना पिता. हमें धीरज देना पिता, हर एक परिवार में दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए आपका प्यार देना पिता. As the word say Matthew 22:38, Lord, love the Lord thy God with all your heart, with all your soul and all your mind. Love thy neighbor as thyself. Help us to love you, Father, this afternoon, this month, this year, in this life you've given us, Lord. We may love you with all our hearts, with all our soul and all our mind. Abba, help us to love our neighbors as we love ourselves. We give you all the glory, we give you all the honor, we give you all the power, we give you all the praises. And truly, this is the Lord's doing, it is marvelous and nice. For to me to live is Christ, and to die is gain. This is the Lord's doing, it is marvelous and nice. I give you all the glory, Father, once again. All the honor, all the praises, all the power goes to you, Lord. Thou art worthy, O Lord, to receive all the glory, to receive all glory, to receive glory, honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. In Jesus' name I pray. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. God bless you all. प्रभु तुम्हारा आशीर्वाद दो wherever you are. हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का प्यार आपके दिलों में और बढ़ता जाए, और आप पूरा जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर सच्चे प्यार के पास आ जाए. वो सच्चा प्यार आपको, आप जैसे हो, आपको स्वीकारने के तैयार है. You don't have to be somebody in order to be accepted. He has already accepted you. यीशु मसीह ने आपको पहले से ही स्वीकारा है. No matter how you look, no matter how pretty you are, how ugly you are, it doesn't matter. He sees the beauty of the heart. और इसीलिए I hope and pray till Jesus comes, keep on loving him with all your heart, with all your soul and all your mind. Love thy neighbor as thyself. यीशु मसीह को चेले हैं, ये दुनिया को दिखाएंगे यीशु मसीह के प्यार से. Amen. God bless you all. Please be also on YouTube. If you get a time, just scroll about. We are at Bethesda AG Church on YouTube. We are also on Insta. We just began Instagram. Please feel free to just scroll up, and we will be happy. अगर आप से परमेश्वर ने अपनी बातें की है तो प्लीज रिवर्ट अस बैक, और हमें उत्तेजन मिलता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपको छुआ है. प्लीज प्रे फॉर अस. गॉड ब्लेस यू. May God bless you and keep you. May God make his face shine upon you and be gracious to you. May God lift up his countenance upon you and give you peace. प्रभु तुम्हाला भरपूर आशीर्वाद देव. God bless you all, and we love you with the love of Christ. Thank you so much.